Good morning, students. Hope you all are well and watching my videos. In my last video, I was explaining the lesson The Tiger King from your textbook Vistas. This lesson is written by Kalki. So, students, let's move further. All of you see page number 11, part 3rd. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhpuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. So, students, till now we have seen that when king killed his first tiger, he was so excited, he was so happy that he called for the chief astrologer. Actually, he wanted to show to the chief astrologer that he has predicted, he has proved his predictions false. But when the chief astrologer came, he told the king that he would be able to kill only 99 tigers and the 100th one would prove to be fatal for him. And if the king would succeed in killing the 100th tiger, the astrologer he promised to cut off his tuft of hair and to burn all his astrology books and become an insurance agent. So, from that time onwards, the king banned tiger hunting in his kingdom. So, when the tiger hunting was banned in the kingdom, it became a celebration time for all the tigers in the state. Means जब किंग ने यह घोषणा की कि भाई उनके स्टेट में कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा एक्सेप्ट किंग, तब टाइगर्स जो थे वो उनको जब ये बात पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. उनके लिए एक सेलिब्रेशन टाइम होता है. एंड a proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. Proclamation means एक घोषणा की जाती है कि कोई टाइगर हंटिंग की बात तो भूल जाओ, कोई एक छोटा सा स्टोन भी टाइगर के ऊपर नहीं फेंकेगा. एंड इफ एनी वन डेयर्स टू डू दिस एट दैट टाइम, क्या होगा, उनकी जितनी वेल्थ है, उनकी जितनी प्रॉपर्टी है, वो स्टोन फेंकने वाले की वो सब जब्त कर ली जाएगी स्टेट के द्वारा. मीन्स कॉन्फिस्केटेड मीन्स जब्त करना. मतलब कि उस बंदे की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी वेल्थ होगी, वो सब ऑटोमेटिकली किंग के पास चली जाएगी, स्टेट के पास चली जाएगी. द महाराजा वोड he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. किंग भी कसम खाते हैं. वोड मतलब कि कसम खाते हैं. ही वुड अटेंड टू ऑल द अदर मैटर्स. वो भी ये कसम खाते हैं कि पहले वो 100 टाइगर्स को किल करेंगे. देन ओनली ही विल बी डूइंग एंड सीइंग एनी अदर स्टेट मैटर्स. वो किसी दूसरे काम में इंटरेस्ट तभी लेंगे जब तक उनके 100 टाइगर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक उनके 100 टाइगर्स की हंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है. सो नो बडी शुड डिस्टर्ब हिम अबाउट दैट. इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. यानी कि इस सेंटेंस से किंग की एम्बिशन का भी पता लगता है कि किंग की एम्बिशन थी कि वो पहले अपना टारगेट यानी कि टू किल द 100 टाइगर्स कंप्लीट करेंगे, तभी उसके बाद किसी दूसरे काम में ध्यान देंगे. Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark.
The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. ऐसा नहीं था कि उन्होंने किंग ने खतरों का सामना नहीं किया, डेंजर्स को फेस नहीं किया। कभी कभी तो बुलेट जो थी, जब उन्होंने टाइगर को टारगेट किया और उसके ऊपर बुलेट छोड़ी, उस समय कभी उन्होंने अपना मार्क भी मिस किया एंड कंडीशंस ऐसी आई कि टाइगर ने उनके ऊपर जंप किया। लेफ्ट मीन्स जंप। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उन्होंने बिना किसी वेपन के, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के उस बीस्ट से, बीस्ट यहाँ पे टाइगर को बोला गया है, उसके संग भी युद्ध किया। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, मीन्स जीत जब भी हुई वो किंग की ही हुई। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बार ऐसा भी वक्त आया कि जब उनकी जो गद्दी थी वो भी डेंजर में आ गई थी। A high ranking British officer visited Pratibandhpuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhpuram. But the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a bow hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि एक हाई रैंक वाला ब्रिटिश ऑफिसर जो था उस स्टेट में आता है एंड ही वॉज फाउंड ऑफ टाइगर हंटिंग्स। उसको टाइगर हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और हंटिंग के साथ साथ उसको वो हंट किए हुए टाइगर्स के संग फोटो लेने का भी बहुत शौक था। तो जब वो टाइगर किंग के स्टेट में आता है और परमिशन मांगता है कि ही वॉन्ट टू हंट द टाइगर्स ऑफ दैट स्टेट, तब उसकी परमिशन को रिफ्यूज़ किया जाता है और उसको सजेस्ट किया जाता है कि वो टाइगर हंटिंग तो अलाउ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इफ़ ही वांट्स, उसके लिए दूसरे टाइप के एनिमल्स की हंटिंग अवेलेबल कराई जा सकती है ना। तो द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. अब क्या होता है, जब ये न्यूज़ किंग अपने दीवान से ब्रिटिश ऑफिसर को भिजवाता है कि he could not allow the tiger hunting but any other animal hunting would go on, and if the British officer want that he can go for that conduction. ऐसी स्थिति में ब्रिटिश ऑफिसर वापस दीवान से किंग को कहलवाता है कि ठीक है, आप मुझको अलाउ नहीं करते तो मुझको परमिशन मत दीजिए, आप हंटिंग कर लीजिए टाइगर की। यानी कि जो किंग है वो खुद हंट कर ले टाइगर को, लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दे दे कि वो जो डेड टाइगर है, टाइगर्स कार्कस में जो उसकी डेड बॉडी है, उसके साथ वो उसकी अपनी फ़ोटो ले ले, क्योंकि उसको फ़ोटो खींचने का बहुत ज़्यादा शौक था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन जो किंग थे वो इसके लिए भी तैयार नहीं हुए, उन्होंने उसको भी मना कर दिया कि मैं आपको फ़ोटो भी नहीं लेने दूंगा। इफ़ आई एम गोइंग टू किल द टाइगर तो मैं ही उसके संग फ़ोटो खिंचवाऊंगा, उसकी डेड बॉडी के संग मैं ही फ़ोटो खिंचवाऊंगा, मैं उस टाइगर की डेड बॉडी के साथ भी उस ब्रिटिश ऑफिसर को फ़ोटो नहीं खिंचवाने दूंगा। If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि किंग को पता था उस समय ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी वहाँ पे, तो उन्होंने ऐसा किया कि मैं
सपोज आज आपको परमिशन देता हूँ, कल को दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आ जाएंगे, परमिशन मांगेंगे, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू? क्योंकि उसको तो अपने एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शंस को भी झूठा साबित करना था, तो उसके लिए तो एक बिग प्रॉब्लम हो जाती, एक चैलेंज हो जाता। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब उसने ब्रिटिश ऑफिसर को हंटिंग के लिए भी मना कर दिया, अब उसने ब्रिटिश ऑफिसर को फोटोग्राफ के लिए भी मना कर दिया। अब मन ही मन किंग को ऐसा लगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ से चले जाए और आगे जाके जो इसके ऊंचे वाले ऑफिसर्स हैं, जो इससे भी ज़्यादा हाई रैंकिंग वाले ऑफिसर्स हैं, उनसे शिकायत कर दे। एंड कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि ही वुड लूज हिज किंगडम। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में किंग ने अपने दीवान को बुलाया एंड ही स्टार्टेड deliberations ओवर दिस इशू। deliberations मीन्स यू कैन से मतलब एक दूसरे की सलाह ली, उससे भी एडवाइस ली कि भाई ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। एज अ रिजल्ट, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थ विद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different design। अब इसका नतीजा ये निकला, दीवान ने और किंग ने डिसाइड किया कि वो लोग कलकत्ता की एक बहुत ही फेमस ज्वेलर्स की ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने उसको एक टेलीग्राम लिखा। उस जमाने में फ़ोन तो होते नहीं थे, टेलीग्राम्स और लेटर्स ही चलते थे, तो उन्होंने टेलीग्राम किया और उनसे कहा कि आपके यहाँ के जितने भी एक्सपेंसिव यानी कि महंगे से महंगी डायमंड की अंगूठियाँ हों, अलग अलग डिज़ाइंस में, वो आप हमारे यहाँ पे एज अ सैम्पल भेज